So here is the next topic of the fundamental unit of life. Last lecture we have studied about cell membrane, cell wall, nucleus and cytoplasm. Today we are going to discuss about various cell organelles. So the first and most important cell organelle is mitochondria. What is mitochondria? Mitochondria is a capsule-like structure. It is a double membrane structure. You can see the structure of mitochondria. Generally they are of rod shaped or capsule shaped or maybe spherical shaped, and they are double membrane bound cell organelle. Its inner membrane is projected into numerous finger like structure. So there are two membranes, outer and inner. The inner membranes having this finger like structure, they are known as cristae or crista. Okay, in plural cristae, in singular crista. Mitochondria are the sites of cellular respiration, means these are the sites of production of energy. Okay, ATP is produced here. Mitochondria में ATP produce होता है, and that is why mitochondria are known as powerhouse of cell. And mitochondria is one of those cell organelles who are having their own DNA and RNA and ribosome. Okay, so mitochondria can produce their own protein. That's why mitochondria are known as semi autonomous cell organelles. मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो खुद का प्रोटीन खुद का काम खुद कर सकता है, जिसको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है. ओके, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बिकॉज दे आर हैविंग इट्स ओन डीएनए. अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस का डीएनए जैसा नहीं होता है. इट्स अनलाइक द सेलुलर डीएनए. Rather, the DNA of mitochondria is we can resemble the mitochondrial DNA or empty DNA to the nucleus of prokaryotic organism. यानी कि बैक्टीरिया में जैसे डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में वैसे ही डीएनए पाया जाता है. ओके, फंक्शन cellular respiration means due to this mitochondria energy is produced inside the cell, hence they are known as powerhouse. Okay, now endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a mesh-like structure which is composed of numerous tubes. It extends from the plasma membrane to the nuclear membrane. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ से स्टार्ट होके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक साइटोप्लाज्म में थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये एक मेश यानी कि एक नेटवर्क फॉर्म करके सिचुएटेड रहता है. According to their roughness and smoothness, there are two kind of endoplasmic reticulum, ACR or smooth ER, RER और rough ER. ऐसा क्यों है? कुछ endoplasmic reticulum smooth, कुछ endoplasmic reticulum rough. Here we can see on the outer membrane of few endoplasmic reticulum there are deposition of ribosome. तो जिस endoplasmic reticulum के ऊपर ribosome डिपोजिट हो जाता है उसका सरफेस रफ हो जाता है, और in case of few endoplasmic reticulum there is no deposition of ribosome on their outer membrane. That's why they are known as smooth endoplasmic reticulum. Now function, it serves as the transport channel in cell. सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है, यानी कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाता है. और क्या करता है? ERs serve as role of packaging many substances inside the cell. पैकेजिंग मतलब अलग अलग जो बायोमोलिक्यूल्स है, ओके, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये लोगों को जो कन्फॉर्मेशनल चेंज, इन लोगों का जो स्ट्रक्चरल चेंज करने में हेल्प करता है ये ER. एंड ऑल्सो दे प्रोड्यूस प्रोटीन. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम होता है, so they can produce protein, and smooth endoplasmic reticulum they can produce lipid as well as they are the precursor of Golgi body.
ओके, यानी कि सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम है ये अल्टीमेटली कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. सो दे हैव a much important role inside the cell. Now Golgi complex or Golgi apparatus or Golgi body, there are many names. Golgi complex was discovered by Camillo Golgi and that's why they are known as Golgi body or Golgi apparatus. It is composed of many sac-like structures named cisternae, vesicles and vacuoles. This long sac-like structure are known as cisternae. Okay, there are a few channels, they are known as vesicle या Golgi vesicle. Okay, and there are few empty sacs, they are known as vacuoles or Golgi vacuoles, which are stuck one above another. जनरली जो सिस्टर्नी जो होता है, सिस्टर्नी और वेसिकल्स एक दूसरे के ऊपर एक पैरेलल सैक जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक पैरेलल लेयरिंग फॉर्म करता है. ओके, और इन प्लांट सेल दिस गोल्गी बॉडी इज नेम्ड एज डिक्टियोसोम. प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी ना करके इसको डिक्टियोसोम नाम दिया गया है. Now, what is the function of Golgi complex? Actually, Golgi complex act as a modifier machinery inside the cell. Golgi complex is responsible for packaging of various substance in the cell and secretion of protein, enzymes and lipid and modification of protein and carbohydrate. तो Golgi body का मेन दो फंक्शन यहाँ पे याद रखना है. एक तो secretion of proteins and enzymes and lipids, यानी कि इसके अंदर ये जो vesicles और vacuoles के अंदर जो बायोमोलिक्यूल से स्टोर करके रखता है, ये सिचुएशन के हिसाब से क्या करता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है. इसको कहा जाता है सिक्रेशन. और पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम भी ये करता है, यानी कि गोल्गी बॉडी एक मशीन का काम करता है मतलब जिसमें मैं पहले डिस्कस किया था पिछले कोई स्लाइड में कि सेल के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड बनता है, दे आर नॉट एक्टिवेटेड. Okay, so activation of those carbohydrates, protein and lipids are done inside the Golgi body. Golgi body क्या करते हैं, उन लोगों का कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस करता है, यानी कि स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन लाता है और उन लोगों को यूजेबल, यानी कि सेल उसको यूटिलाइज कर पाए इस लायक बना देता है. Now लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी से प्रोड्यूस होता है लाइसोसोम. What are they? Lysosome are small sac-like structure and they are derived from Golgi complex, जो मैं बोला अभी. Lysosome contains digestive enzymes. Okay, so lysosome का importance क्या है? Lysosome contains more than 50 types of hydrolytic enzyme. More than 50 types of hydrolytic enzyme. Okay, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का हेल्प से ये दूसरे जो सब्सटेंस है, दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में इसका जो एंजाइम्स है वो हेल्प करता है. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइसोसोम. एंड लाइसोसोम्स आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल. ओके, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल. Function of lysosome: the enzymes in the lysosome digest the foreign particle and thus destroy them. तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर कोई फूड मटेरियल आता है तो उसको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम. या तो सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है, यानी कि फॉरेन प्रोटीन, यानी कि सेल के अंदर का नहीं है, जो बाहर से आ रहा है, ऐसा सब्सटेंस को कहा जाता है फॉरेन सब्सटेंस. तो ऐसा सब्सटेंस को डाइजेस्ट करता है, अल्टीमेटली उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. समटाइम्स द लाइसोसोम में ब्रस्ट opens and its content ends up digesting the content of the cell. The cell gets killed in the process. Due to this, lysosome is also called suicidal bag of cell. When cell is affected or cell is attacked by virus or bacteria or fungus, any pathogen, when cell face any pathogenic attack, then lysosome, what it does in order to avoid the infection to the neighboring cell, यानी कि एक सेल जब इन्फेक्टेड हो जाता है, उस सेल से इन्फेक्शन दूसरे जो नेबरिंग जो सेल है उसके आसपास जो सेल है इन्फेक्शन ना फैल जाए, इसलिए क्या करता है, लाइसोसोम ब्लास्ट हो जाता है और अपना खुद का जो सेल है उसी को डाइजेस्ट कर देता है. यानी कि उसका जो कंपोनेंट है उसको डाइजेस्ट कर देगा तो सेल मर जाएगा. तो क्या होगा, जो इन्फेक्शन है
बाहर नहीं जा पाएगा। मानो कि बात ऐसा है कि एक बिल्डिंग में टेररिस्ट अटैक हुआ है, ओके। अब ये जो टेररिस्ट है उस जगह से शहर का अलग अलग कोने में फैल सकता है। तो अब क्या किया गया, कमांडो ने हाँ बिल्डिंग में अंदर घुसा और बिल्डिंग के अंदर बम ब्लास्ट कर दिया। उसमें कमांडो खुद भी मारा गया, और बिल्डिंग का सारे लोग भी मारा गया, और बिल्डिंग के अंदर जो टेररिस्ट था वो सब भी मर गया। तो इसमें फायदा क्या होगा, वो टेररिस्ट जो है वो उस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा पाएगा, ओके। दैट इज वाई लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम का जो फंक्शन है कुछ ऐसा ही होता है। दिस इज दे आर नोन एज सुइसाइडल बैग्स। Now ribosome or the protein factories of cell. They are teeny dot-like structure interspread in cytoplasm and also on the surface of rough endoplasmic reticulum. मतलब ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म इधर उधर स्प्रेड हुए, इधर उधर बिछाया हुआ मिलता है। उसके साथ साथ आर के ऊपर भी ये देखने को मिलता है। राइबोसोम्स फाउंड इन यूकारियोट्स आर 80S टाइप एंड इन प्रोकारियोट्स जनरली ऑफ 70S टाइप। अब जो राइबोसोम होता है यूकारियोट और प्रोकारियोटिक में लोगों का नेचर थोड़ा अलग होता है, ओके। अभी 80S 70S क्या है, एस इज द वेइंग यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम को जब वे किया जाता है तब उन लोगों का जो जिस यूनिट में उन लोगों का वेइंग किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्वेदबर्ग यूनिट अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट स्वेदबर्ग, ओके। सो जो प्रोकारियोटिक में राइबोसोम है देयर ऑफ 70S टाइप, यानी कि उन लोगों का जो वे है वो क्या होता है 70 स्वेदबर्ग यूनिट, और यूकैरियोटिक में होता है 80S और 80 स्वेदबर्ग यूनिट। If we look at the structure of ribosome, ribosome is made up of two structure, large subunit and small subunit, and that is why the structure is known as telephone receiver model. This is the telephone, this is the receiver, and this is the telephone, okay. And it is constructed of two subunits. So function, ribosome is responsible for protein synthesis, so known as protein factory of cell, okay. यानी कि राइबोसोम का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम कैन रीड mRNA। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि डीएनए सेल का सारे एक्टिविटीज तय करता है, ओके। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए mRNA को मैसेज भेजता है कि किस तरह से प्रोटीन बनाना है। mRNA कैरीज दैट कोड विच इज गिवन बाय डीएनए, द ऑर्डर विच इज गिवन बाय डीएनए। तो mRNA को रीड करने का काम करता है राइबोसोम, और mRNA में जिस तरह से प्रोटीन बनाने के लिए बोला जाता है प्रोटीन का कोड रहता है, उसी तरह से राइबोसोम प्रोटीन बनाते हुए जाता है, ओके। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। प्लास्टिड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, absent in animal cell. So these are somewhat similar to mitochondria in appearance, यानी कि they are maybe of rod shape, they are maybe of capsule shaped, or they are maybe of spherical shaped, and they are also double membrane bound as like mitochondria, and they are having their own DNA and ribosome. That's why plastids are also semi autonomous cell organelle, यानी कि खुद का प्रोटीन खुद ये बना सकता है। प्लास्टिड को भी सेल का न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। Plastids are found in plant cell. There are two types. Okay. There are two types, chromoplast and leucoplast. यहाँ पे एक्चुअली ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, ओके। जो कलरफुल प्लास्टिड होता है उसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, जो कलरलेस प्लास्टिड होता है उसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट को भी क्रोमोप्लास्ट अलग अलग क्रोमोप्लास्ट का टाइप्स हो सकता है, ओके। जैसे कि जो क्रोमोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल, ओके। देयर आर मेनी अदर कलर्स प्लास्टिड आल्सो लाइक xanthoplast, rhodoplast, pheoplast. According to the base of their color, means on the basis of their color or the pigment which they are carrying, the chromoplast are named accordingly, okay. Plastids too have their own DNA and ribosome, as I said. That's why they are also semi-autonomous cell organelles. Now function of plastid.
Leucoplast are responsible for storing food such as carbohydrate, protein, lipid. Chromoplast impart various colors of the plant parts. A leaf of a plant is green in color because of chloroplast. Chloroplast is the site of photosynthesis. तो ये हम लोग सब जानते हैं कि क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलरफुल प्लास्टिड है. तो जो फ्लावर्स का अलग अलग कलर है या फ्रूट्स का जो अलग अलग कलर है ये ऑब्वियसली प्लास्टिड्स के लिए होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज played by chloroplast, that is photosynthesis, that absorb sunlight and help in photosynthesis. Now vacuole, these are fluid filled chambers and are often seen many cells. वैक्यूल्स का क्या काम होता है? स्टोर हाउस का काम होता है, यानी कि जो भी एक्सेस मटेरियल होता है सेल का वो सेल अपना वैक्यूल्स में स्टोर करके रख देता है. ओके, वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन प्लांट सेल. जनरली प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है एक सिंगल एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है. जनरली प्लांट सेल में वैक्यूल, जनरली एनिमल सेल में वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट फ्यू यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम. हाँ, ये लोगों में वैक्यूल देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल, फूड को स्टोर करने के लिए. लेकिन जनरली एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है. नाउ सेंट्रियोल, फॉर्मरली नोन एज सेंट्रोसोम. तो ये जो सेल ऑर्गेनेली है ये भी सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, एब्सेंट इन प्लांट सेल. एंड सेंट्रियोल्स को पहले हम लोग सेंट्रोसोम कहते थे, लेकिन अभी उसका नाम चेंज करके सेंट्रियोल रख दिया गया है. ओके, दिस इज अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली. तो सेल के अंदर मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली, इससे पहले क्या था? राइबोसोम, जो कि एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली था. और सेंट्रियोल्स ये भी मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली है. तो इन each animal cell, two cylindrical star shaped entity present near the nucleus. तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस के नज़दीक, न्यूक्लियस के आसपास ही हम लोगों को सिलेंडर के जैसा शेप का दो एस्टेरॉयड यानी दो स्टार शेप्ड, नॉट एस्टेरॉयड, दो स्टार शेप्ड यानी कि स्टार शेप्ड सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलता है. दे आर नोन एज सेंट्रियोल्स. एक्सेप्शन नर्व सेल. नर्व सेल और आरबीसी में, ये दो तरह का सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल to divide. Okay, because the function of centrioles are to help in division of cell. They forms the spindle fiber. spindle fiber क्या होता है? एक ट्रैक है, पाथवे होता है जिसके ऊपर से क्रोमोसोम मूव कर सकता है. ओके, सो दैट्स व्हाई दे हेल्प इन सेल डिवीजन. अब जो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होगा वो एनिमल सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा, जैसे कि हम लोग का न्यूरॉन या नर्व सेल. ओके, जनरली बाकी सारे जो सेल्स होता है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ मतलब पॉपुलेशन में यानी कि संख्या में बढ़ते रहता है. ओके, बट एक छोटे बच्चे में, एक इन्फेंट में जितना नर्व सेल होता है एक एडल्ट फुली ग्रोन ह्यूमन बीइंग में उतना ही नर्व सेल होता है. So this is all about the basics of cell organelles. Thanks all.